So evaluation pattern according to the VCI MSB 2016, that is VCI means Veterinary Council of India and MSB is Minimum Standard of Veterinary Education. So ये जो मॉडिफाई किया था 2016 में, और ये 2016 वाला सिलेबस ही अभी तक चल रहा है. So according to this VCMSB 2016, जो वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री है वो BVSC and AH के सेकेंड ईयर में आते हैं. ओके, इसका जो क्रेडिट आवर्स है वो है 3, मीन्स दैट इज 2+1. तो 2+1 means there are 2 theory classes and 1 practical classes in a week. ओके, वीकली 2 theory classes होता है और 1 practical classes. ओके, इसके पूरे सिलेबस में टोटल 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. ओके, जो यूनिट 1 है वो जनरल वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री में, एंड यूनिट 2 है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, और यूनिट 3 जो है वो वेटरनरी एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री. जो यूनिट 1 दैट इज जनरल वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री में तो सिलेबस है, सो मेनली जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं. यूनिट 1 लाइक स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ओके, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जैसे फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन. ओके, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, डोनर मेम्ब्रेन, एसिड पीएच बफर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फिर बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें सारे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का जो सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. Then biochemistry of lipid में properties and biological significance of all the lipids. Okay, then fat indices. Then biochemistry of protein में protein and amino acid के classification, structures, functions. And biochemistry of nucleic acids है, that is mainly DNA and RNA का normal structure, types and functions के बारे में इसमें include होता है. तो ये है unit 1. Okay, general veterinary biochemistry. Then coming to unit 2, it is known as intermediary metabolism. Okay, so intermediary metabolism है उसमें include होता है सारे enzymes का, जो भी definition है, classifications है, different types of enzyme, their activity, okay, inhibition. Then next topic in unit 2, it is biological oxidation. Then carbohydrate metabolism, lipid metabolism, protein metabolism and nucleic acid metabolism. Then unit 3 में ये है veterinary analytical biochemistry. ओके, जो यूनिट 3 है इसमें कवर होता है जितने भी डिसऑर्डर्स होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर्स, लिपिड डिसऑर्डर्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स. ओके, डिटॉक्सिफिकेशंस, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब जितने भी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है, एसिड बेस बैलेंस एंड इट्स डायग्नोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. सो इस यूनिट में ये सारे कवर होता है. ओके, यूनिट 3 में, दैट इज वेटरनरी एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री. सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही होता है, जैसे यूनिट 1 में जो जनरल वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम लोग जितने भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जैसे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं. ओके, एसिड एंड एल्कालीज को कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, टाइट्रेशन, देन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट. ओके, then acid number कैसे डिटेक्ट करते हैं, color and precipitation reaction of proteins, estimation of amino acids. So these are come under the unit 1. and unit 2 का जो intermediate metabolism है, unit 2 में जो practical classes होगा वो है effect of temperature and pH on enzyme activity, then estimation of blood or plasma glucose, protein, inorganic phosphate, calcium, magnesium, then estimation of ascorbic acid by DCPIP method, then lactose determination by using Benedict quantitative test. Okay, estimation of sodium and potassium by flame photometer, then chromatography techniques. Okay, then estimation of vitamin A by colorimetry. Then unit 3, that is in veterinary analytical biochemistry. So mainly here we'll do all the diagnostic tests like urine analysis, then liver function test like ALT, AST, then all the determination of acute phase proteins like CRP. Okay, then estimation of total serum cholesterol, blood urea nitrogen, creatinine, serum bilirubin, then principles of various diagnostic tests,
then their comparative values of normal and abnormal values in different species. Okay, so these are all the syllabus of all the 3 units covered under the veterinary biochemistry. Now coming to the examination pattern, that is evaluation pattern. Okay, so examination pattern में जो weightage होता है theory and practical, they are in the ratio of 60:40 respectively. Okay, theory and practical का जो ratio है वो 60:40 weightage में. The distribution of marks for objective and subjective questions in each subject shall be in the ratio of 40:60. Means ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 का आता है और सब्जेक्टिव 60 का. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेनली इंक्लूड होता है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, देन ट्रू फॉल्स, मैचिंग. ओके, so these are come under the objectives or objective maximum 40. Okay, and then subjective questions like short notes, reasonings, then descriptive questions. So these are in the ratio of 60. Okay, that is in the ratio of 40:60. और जो पेपर होता है टोटल 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है वो उसमें कवर होता है यूनिट 1 एंड यूनिट 3 का सिलेबस. ओके, यूनिट 1 में जो जनरल वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री और यूनिट 3 जो है वो है वेटरनरी एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री. ओके, जो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 है वो पेपर 1 में आता है और जो पेपर 2 है उसमें यूनिट 2 दैट इज इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट कवर होता है. नाउ कमिंग टू शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. सो इट शैल कंसिस्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड एनुअल एग्जामिनेशन. 2 असेसमेंट होता है, 2 एग्जामिनेशन है, एक है इंटरनल एग्जामिनेशन और एक है एनुअल एग्जामिनेशन. ओके, सो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसमें 3 इंटरनल असेसमेंट होता है. ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंटरनल असेसमेंट. जो फर्स्ट असेसमेंट है वो कब कंडक्ट करते हैं जब पूरा होल सिलेबस का 30% कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो तब फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट सेकेंड जो इंटरनल असेसमेंट है वो होता है जब 60% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड. ओके, जब 60% सिलेबस कवर्ड होता है तब होता है सेकेंड इंटरनल असेसमेंट. और थर्ड इंटरनल असेसमेंट जो है वो जब 90%, ओके, जब 90% कवर होता है तब है थर्ड इंटरनल असेसमेंट. ओके, ये देखो फर्स्ट इंटरनल में 30% कवर होता है, सेकेंड में 60% में, और थर्ड इंटरनल असेसमेंट जो है वो 90%. जब पूरे होल सिलेबस का जब 90% कवर हो जाता है तब थर्ड. और जो मैक्सिमम मार्क्स है तीनों इंटरनल असेसमेंट में, मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ले सकते हैं 40 मार्क्स तक. ओके, तो हर यूनिवर्सिटी का ये अलग अलग रूल होता है. जैसे कोई कॉलेज में 10 मार्क्स का भी लेते हैं, कोई 20 का, कोई 30 का, लेकिन मैक्सिमम 40. ओके, 40 के अबोव नहीं ले सकते हैं. तो मैक्सिमम मार्क्स 40. और वेटेज जो है तीनों इंटरनल असेसमेंट का वेटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 मार्क्स. सपोज 40 का लुआ. ओके, सो 40 में हम लोगों को बस 10 का वेटेज लेना है. ओके, सपोज आपको 40 में से 40 मिल गया, सो हम लोग जब 10 का वेटेज लेंगे वो 10 होगा. मतलब 40 में 40 मिलेगा तो 10 में 10 आएगा. ओके, और ये जो तीनों इंटरनल असेसमेंट है उसमें हम लोग बेस 2 को कंसीडर करते हैं. कोई आउट ऑफ 3 इंटरनल असेसमेंट only base 2 will be considered for the annual examination. Then external examination का 2 पेपर है, both theory and practical में. theory में भी 2 पेपर होता है, practical में भी 2 पेपर होता है. जो theory का 2 पेपर है उसको हम लोग बोलते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है वो यूनिट कौन कौन सा कवर होता है, यूनिट 1 एंड यूनिट 3. एंड पेपर 2 जो है वो है यूनिट 2 में. ओके, यूनिट 2 दैट इज इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म. और इसका भी जो है मैक्सिमम मार्क्स 100. ओके, सो दोनों का ही 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 100. और इसका जो वेटेज है वो है 20-20. ओके, पेपर 1 का भी हम लोग 20 वेटेज लेंगे, पेपर 2 का भी 20. देन प्रैक्टिकल का भी सेम है, पेपर 1 एंड पेपर 2. और जो इसका प्रैक्टिकल का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 60. ओके, ये 60.
दोनों में 60-60, पेपर 1 एंड पेपर 2, मैक्सिमम मार्क्स। और जो वेटेज हम लोग लेंगे प्रैक्टिकल का वो 20-20। ओके, सो टोटल मीन्स टोटल जो वेटेज होता है, टोटल मार्क्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 में। जैसे इंटरनल असेसमेंट से 20 आ गया, ओके, फिर थ्योरी का पेपर 1 से 20, फिर पेपर 2 से 20, देन पेपर प्रैक्टिकल का पेपर 1 से 20 और पेपर 2 से 20, तो टोटल कितना हो गया 100। सो ड्यूरेशन होता है इंटरनल असेसमेंट का, ये एटलीस्ट 1 आवर का होना चाहिए। एंड व्हेयर इज द ड्यूरेशन ऑफ एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स। ओके, ये 3 आवर्स का होना चाहिए एनुअल थ्योरी, क्योंकि वो 100 मार्क्स का होता है। An annual theory examination it shall be conducted by inviting the question paper from appointed paper setter. So annual theory examination का को जो theory papers आते हैं वो बाहर से आते हैं, ओके, उसके लिए पेपर सेटर्स अपॉइंट करते हैं। एंड जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका कंसर्न इंस्ट्रक्टर जो है कॉलेज का वही सेट करते हैं, ओके। एंड जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो इंटरनल ही होता है, मतलब वो कॉलेज के जो कंसर्न इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे तो वही कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकल, ओके। सो एक्सटर्नल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इंटरनल होता है प्रैक्टिकल। बस थ्योरी का जो है, थ्योरी पेपर जो है वो एक्सटर्नली सेट करते हैं और पेपर सेट भी करते हैं बाहर से, और पेपर चेकिंग करने के लिए भी बाहर से ही, बाहर के यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। ओके, सो ये जो है वो सारे है इवैल्यूएशन एंड द सिलेबस ऑफ द वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री फॉर द सेकेंड ईयर BBSc and AH course. Okay, so next topic we'll discuss about the scope and importance of biochemistry that is covered in the unit 1. Okay, unit 1 का जो first topic है that is scope and importance of biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री है, सो इसमें क्या है, जो बायोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बनता है, एक है बायो एंड एक है केमिस्ट्री। सो बायो मीन्स व्हाट, बायो मीन्स दैट इज लिविंग बॉडी, ओके। एंड जो केमिस्ट्री होता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन, ओके। सो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है that is means chemical reactions occurring in the living system. Okay, simple definition of biochemistry. So biochemistry, it is the branch of science that deals with the study of chemical processes and substances that occur within the living organism. So main जो है bio means that is living organism, that is the all the chemical reactions occurring in the living organism is known as the biochemistry. Okay, जो biochemistry जो है वो क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है between the subject biology and chemistry. Okay, 2 सब्जेक्ट का ये एक ब्रिज बनाया है। किस किस के सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक है बायोलॉजी और दूसरा है केमिस्ट्री, ओके। और जो बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेनली फोकस ऑन द structure, function and interactions of biomolecules like proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids. Okay, and it also explains the molecular basis of life. So Carl Alexander Newberg, okay, this scientist is known as the father of biochemistry. Okay, this one is very important. Who is known as father of biochemistry? That is Carl Alexander Newberg. Okay, he is known as the father of biochemistry, and he coined the term biochemistry in 1903. And mainly जो न्यूबर्ग है उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, एंजाइम एंड फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के ऊपर, ओके। एंड हिज स्टडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, ओके। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो स्टडी किया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, वो न्यूबर्ग ने किया था, स्टार्ट किया था, ओके। सो ये सब कारण की वजह से कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को बोलते हैं फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री।
नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ओके, बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, सो बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. ओके, सो बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हम लोग जितने भी बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड का जैसे डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो बेसिस होता है जेनेटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, in physiology the study of body function overlaps with the biochemistry. Okay, ऐसे immunology में भी, इसमें immunology employs several biochemical techniques. Okay, so biochemistry जो है वो pharmacology and pharmacy का भी basis होता है. Most of the drugs are metabolized by the enzyme catalyzed reactions. Okay, जो ड्रग्स होता है वो कैसे मेटाबोलाइज्ड होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, बायोकेमिस्ट्री में. ओके, नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स इंटरेक्टिंग विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, then biochemical approach is the basis for the elucidation of disease process, that is the pathology. Then understanding nutrition depends on the knowledge of biochemistry. Okay, न्यूट्रिशन में भी हम लोग जैसे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन कैसे मेटाबोलाइज होता है बॉडी में. ओके, molecular biology, a major branch of biochemistry, it is the study of gene structure, function and regulations. So knowledge of biochemistry, it is essential for biotechnology, a multidisciplinary subject. Means as a whole we can say that biochemistry हर सब्जेक्ट में, मेनली जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, न्यूट्रिशन, तो ये सब में रिलेटेड होता है. Specialized branch of the subject called clinical biochemistry. Okay, it is directly associated with clinical medicine. क्योंकि clinical biochemistry में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी metabolic diseases होता है, like diabetes. Okay, it is a carbohydrate metabolism disorders. Diabetes है, ketosis है. Okay, then renal function disorders, so renal disorders है, kidney diseases. Okay, liver diseases. तो ये सब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का आता है और वो डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कौन सा सब्जेक्ट में होता है, क्लिनिकल मेडिसिन में. जो ह्यूमन हेल्थ है, they most relies on the proper regulation of biochemical reactions while disease arise from disturbances in biomolecular function. Okay, and measuring the level of specific biomolecules in the body is useful for disease prevention, diagnosis, treatment, okay, and evaluating therapeutic effectiveness. ओके, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, सपोज हम लोग को ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज एस्टिमेट करेंगे, ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं किसके लिए, डायबिटीज. ओके, डायबिटीज को डायग्नोसिस करने के लिए. तो ऐसे काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग मेजर करते हैं कोई डिजीज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और इवैल्यूएटिव थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस के लिए. And furthermore, the biochemical techniques can be applied to study a wide range of biological systems, including humans, animals, plants, microorganisms, and viruses. Okay, different biotechniques, बहुत सारे biochemical techniques है जिसमें हम लोग बहुत सिस्टम में यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे वायरल डिटेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज डिटेक्शंस में. ओके, एज ए होल हर सब्जेक्ट में ही. ओके, फिजियोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, न्यूट्रिशन हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, तो हर सब्जेक्ट में विदाउट बायोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं हो सकता है. ओके, इस हर किसी में, जैसे मेटाबॉलिज्म हो तब भी बायोकेमिस्ट्री की जरूरत है, कैसे ऑब्जर्व होता है. ओके, तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक, that is carbohydrate biochemistry. Okay, so general biochemistry of carbohydrates. Okay, so कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, so नाम में ही इसका दो वर्ड है. एक है कार्बोहाइड्रेट, that is carbon and hydrates. Okay, carbon means that is C and hydrate means water.
Okay, means carbohydrate it is C and water. Okay, it is carbon और water. Okay, ये दो बनता है carbohydrates, carbon and water. That is carbon होता है, hydrogen होता है and oxygen होता है. Okay, mainly the carbohydrates are the most abundant biomolecules distributed widely in plants and animals where they perform structural and functional role. Okay, so ये कंपोज होता है कार्बन एंड वाटर से, इसीलिए इसको बोलते हैं दे आर हाइड्रेटेड कार्बन मॉलिक्यूल्स. ओके, generally the hydrogen and oxygen will be present in the proportion of 2:1. Okay, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 में प्रेजेंट होता है. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग कैसे लिखेंगे? Carbohydrates it may be defined as polyhydroxyaldehydes or ketones or any substances that yield one of these compounds on hydrolysis. Okay, ये important है carbohydrate definition में. क्या है? Polyhydroxyaldehydes and ketones. पोलीहाइड्रोक्सी मीन्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा होता है. ओके, और जो पोलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत जाता है इट में भी एल्डिहाइड. ओके, और कीटोन्स. एल्डिहाइड मीन्स इसमें CHO. ओके, एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO. इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप. और जो कीटोन है इसमें होता है CO ग्रुप. ओके, जो कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन है वो क्या हो गया अभी? इट इज polyhydroxyaldehydes or ketones or any substances that yield one of these compounds on hydrolysis. Okay, this is the exact definition of carbohydrates. So carbohydrates का जो empirical formula है वो है CH2ON. Okay, this is the empirical formula of carbohydrate. Or sometimes it is written as CnH2. Okay, ON. Okay, Cn, this one is H2ON. Okay, CnH2ON. Okay, so main definition is it is polyhydroxyaldehydes or ketones or any substances that yield one of these compounds on hydrolysis. And many carbohydrates have the empirical formula. Empirical formula कौन सा है? CH2ON or sometimes it is written as CnH2ON. Okay, where N का जो वैल्यू होता है वो 3 होगा और it may be more than 3. Okay, means at least 3 or more than 3. Okay, suppose ये 3 हो गया then it is, suppose N का वैल्यू 3 है, so it is written as C3H2O3. मीन्स कार्बन जो कंपाउंड है वो 3 है. ओके, सम कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आल्सो. जो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें मेनली कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ना. बट कोई कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है उसमें. ये देखो, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है दिस वन इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, सो ये देखो, ये जो CH से ग्रुप हो इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप, CHO. ओके, और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होता है. 1, ओके, दिस वन इज कार्बन 1, then this one is 2 and this one is 3. ओके, और ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है CHOS, CH2OS. ओके, सो इट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज CHO ग्रुप. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्डोस. मींस जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बो CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एल्डोस. ओके, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसमें एग्जांपल दिया है, इसमें 3 कार्बन है. ओके, और इसका देखो हाइड्रोजन जो है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6. ओके, दैट इज फॉर्मूला, इट इज C3H6O3. इसका N का जो वैल्यू है दैट इज 3.
ओके सो और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोज सुगर। और सिमिलरली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें देखो इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, इसमें CO। ओके इसको बोलते हैं हम लोग कीटो ग्रुप। ओके CO ग्रुप को बोलते हैं कीटो ग्रुप। और जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटोस सुगर। ओके दिस वन इज सो कीटोस और दिस वन इज द एल्डोस। ओके कारण जब CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज एल्डोस, और जब कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है CO ग्रुप देन इट इज नोन एज कीटोस सुगर। ओके दिस वन इज नोन एज द कीटोस सुगर। और इसका जो एग्जाम्पल है इसमें 3 कार्बन है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड में 3 है तो इसमें भी 3 कार्बन है। ओके फॉर्मूला सेम है C3H6O3, बस डिफरेंट यह है कि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके और इस सुगर का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है इसका, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके so this one is the glyceraldehyde and this is the dihydroxy acetone. Okay so aldose and ketose sugar, aldose means इसमें CHO group present होता है, ketose means इसमें keto group that is CO group present होता है। Okay next coming to biological importance of carbohydrate. Okay carbohydrate का कौन कौन सा main important function है। सो मेजर जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी ओके इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। सो मोस्ट ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी शुगर मिलता है, 4 कैलोरी। ओके 4 कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके सो कितने एनर्जी हमें मिलता है, 4 कैलोरी पर ग्राम। Then second function that is glucose, it is also a carbohydrate. Okay, it is stored as glycogen in liver and muscles. Okay, glucose जो है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और 2 ऑर्गन में इसका स्टोरेज होता है, लीवर और मसल। जब लीवर में ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है तब हम लोग बोलते हैं इसको लीवर ग्लाइकोजन, एंड मसल्स में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मसल्स ग्लाइकोजन। Okay, some carbohydrates like cellulose. Okay, cellulose is a polysaccharide. Okay, जो cellulose है means some carbohydrate they give structure to cell walls. Okay, for example cellulose. cellulose क्या करते हैं, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो देते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी। Then some carbohydrate they serve as a metabolic intermediates. For example, glucose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate. Okay, so these are intermediate products of different metabolic pathways. Okay, the metabolic intermediates derived from glucose are used for biosynthesis of amino acid, nucleic acid and nucleotide. मतलब जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है वो क्या है, वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सपोज ये ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। Okay, and these intermediates like glucose 6-phosphate, okay, they derive from glucose. कहाँ से ये derive होता है, ग्लूकोज से, और जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जैसे राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है। ओके राइबोज डीऑक्सीराइबोज ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके जैसे ये राइबोज, ओके राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ओके these are pentose sugar and they comprises large portion of the nucleotide that form DNA and RNA। और अब DNA और RNA का ओके जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। और कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जो डीएनए है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज, और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। ओके The next function, it also play a role in lubrication, okay, cellular intercommunication and immunity.
ओके, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन में। तो लुब्रिकेशन में मेनली कौन सी कार्बोहाइड्रेट, हम लोग ये बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक हाइलुरोनिक एसिड है, वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। And it also plays an important role in the metabolism of protein and fatty acids. Okay, so these are main important function of carbohydrate. So कौन कौन सा हमें मेनली याद रखना है? फर्स्ट तो है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कितने एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलता है। ओके, 4 कैलोरी पर ग्राम। जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन लीवर एंड मसल्स में, और जो कोई कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज हो गया, वो क्या करते हैं? गिव हस्ताक्षर ऑफ सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन के। जो कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज ए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ओके, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। डीएनए और आरएनए बनाने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड में लगता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और एक फंक्शन है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, वो है कोई कोई कार्बोहाइड्रेट की है, जैसे हेपारिन है, हेपारिन एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड, इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये हेपारिन क्या होता है? इट एक्ट एज एन नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। ओके, हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो कोई कोई कार्बोहाइड्रेट हम लोग और एक फंक्शन लिख सकते हैं, कौन सी है फंक्शन? कि कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्ले ए रोल इन anticoagulant. Okay, act as an anticoagulant. Now coming to the classification of carbohydrate. Okay, so carbohydrate को जो classification है वो mainly based on the sugar units they contain. Okay, so based on the sugar units they contain, carbohydrates are classified into 4 groups. 4 groups में classify किया है. Okay, एक है monosaccharides. Okay, first is monosaccharide. Then second is the disaccharide. Okay, first is monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and then polysaccharide. Okay, जो monosaccharide है, mono means क्या? नाम से ही पता चल रहा है, mono means single, ना? तो इसमें means एक ही sugar present होता है, saccharide means sugar. Okay, monosaccharide, mono single, saccharide means sugar, मतलब एक sugar. Disaccharide means it is दो, di means दो, saccharide means sugar, that is दो sugar present होता है. Then oligosaccharides जो है, oligo means few and saccharides means sugar, means oligosaccharide में 3 to 10 units of sugar present होता है, and polysaccharide जो है उसमें many sugar present होता है, means more than 10. Okay, poly means more than 10. Okay, polysaccharide means more than 10 sugar present. So coming to the monosaccharides, so monosaccharides सबसे जो simple sugar है वो है monosaccharide. Okay, it consisting of single polyhydroxy aldehyde or ketone unit, and they cannot be hydrolyzed to yield simpler forms of sugar because क्यों? मोनोसेकेराइड में एक ही सुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसका और हाइड्रोलाइसिस करके दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं. ओके, and they can be subdivided into triose, tetrose, pentoses, hexoses, heptoses and octoses. Okay, so depending upon the number of carbon atoms they possess, कितने कार्बन है सुगर में, ओके, उसके बेसिस के ऊपर मोनोसेकेराइड को ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एंड ऑक्टोसिस, तो इसके सब डिवाइड किया हुआ है. Carbohydrate with an aldehyde as their functional group are called as aldose, and those with keto as functional group are called as ketoses. Okay, जिस कार्बोहाइड्रेट में अभी मैंने पहले डिस्कस किया ना ये कि जिस कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दैट इज CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एल्डोस सुगर, और जिसमें कीटो ग्रुप दैट इज C11O एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम लोग कीटो सुगर. सो मोनोसेकेराइड क्लासिफिकेशन,
अभी देखो मोनोसेक्राइड्स में अगर ठीक है, मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रायोज, मतलब ट्रायोज मीन्स क्या? टी आर आई मीन्स थ्री, मीन्स जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रायोज। ओके, ट्रायोज मीन्स इट इज यूज्ड C3, दैट इज कार्बन 3। ओके, जो कार्बन नंबर है वो 3 कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब n का वैल्यू है इसमें 3। और जो एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, इसलिए इसे ट्रायो एल्डोज बोलते हैं। ओके, एंड देन जो कीटो शुगर है वो है एग्जाम्पल ऑफ कीटो ट्रायो शुगर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोज मीन्स जिसमें CO ग्रुप होता है। ओके, एल्डोज मीन्स जिसमें CHO ग्रुप होता है। ओके, इसमें होता है कीटो। जो एल्डोज है, एल्डोज में एल्डो ट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड और कीटो ट्रायोस का एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, so next classification is tetrose. Tetrose means four. Four means जिसमें जिस मोनोसेक्राइड में कार्बन नंबर 4 प्रेजेंट होगा, 4 कार्बन होता है, that is known as tetrose sugar. ओके, इसमें भी वही क्लासिफिकेशन है। जिस मोनोसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नोन एज एल्डोस। ओके, सो एल्डोस टेट्रोज शुगर का एग्जांपल है एरिथ्रोस। ओके, एंड जो कीटो टेट्रोज शुगर है दैट इज नोन एज एरिथ्रोलोस। ओके, देन कमिंग टू पेंटोज। पेंटोज मीन्स जिसमें 5 कार्बन होता है। ओके, सो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C5H10O5 और एल्डोस पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस और जो कीटो पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोलोस। ओके, देन हेक्सोस। हेक्सोस का एम्पिरिकल फॉर्मूला है C6H12O6 ना। जो एल्डोस में आता है इसका ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। ओके, ये तीनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। ओके, सिर्फ डिफरेंट होता है उसका स्ट्रक्चर में। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है C6H12O6, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, और ये तीनों होता है एल्डोहेक्सोस शुगर। ओके, एंड देन फ्रुक्टोज जो है इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, जो फ्रुक्टोज है उसमें क्या होता है? कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटो शुगर। और इसमें जो कार्बन नंबर है वो 6 प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? मोनोसेक्राइड का हेक्सोस में। ओके, 6 कार्बन मीन्स हेक्सोस शुगर, तो इसीलिए फ्रुक्टोज जो है इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोस। ओके, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसको बोलते हैं कीटोस, एंड कार्बन नंबर जो है वो 6 है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोस शुगर। ओके, अनदर एग्जांपल इट इज द जब कार्बन नंबर 7 होता है इसको बोलते हैं हेप्टोसिस। हेप्टोस मीन्स 7, दैट इज हेप्टो शुगर। ओके, C7H14O7 और इसका जो एग्जांपल है एल्डोहेप्टोस का है ग्लूकोहेप्टोस और कीटोहेप्टोस का है सीडोहेप्टोलोस। ओके, सो मेनली जो कीटो शुगर है उसमें मतलब ये लगाना होता है सफिक्स, जैसे राइबोस को ये राइबुलोस कर दिया, सीडोहेप्टोस को सीडोहेप्टुलोस कर दिया, एरिथ्रोस को एरिथ्रोलोस कर दिया। इसका डेफिनेशन मतलब कार्बन नंबर प्रेजेंट और कौन से एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, ये सब का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। So next is disaccharide. That means they yield 2 molecules of the same or different monosaccharides. Okay? जो मतलब डाइसेक्राइड है उसमें क्या है? डाई मीन्स 2, ठीक है, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होता है डाइसेक्राइड में। ओके, 2 मोनोसेक्राइड, और जो मोनोसेक्राइड है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सपोज कोई कोई डाइसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 2 ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और कोई कोई मोनोसेक्राइड में जैसे जो अलग अलग मोनोसेक्राइड में प्रेजेंट होता है, कोई कोई जैसे एक ग्लूकोज हो गया, दूसरा जो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होगा इट में भी गैलेक्टोज। ओके,
So example of disaccharide they are sucrose, lactose, maltose. Okay, ये examples जो है वो बहुत important है. और एक है त्रिहालोज. Okay, त्रिहालोज भी disaccharide है. और एक है सेलोबायोज. तो ये सब भी disaccharide है examples. Okay, mainly ये तीन sucrose, lactose and maltose. फिर त्रिहालोज and सेलोबायोज भी disaccharide में आते हैं. Then oligosaccharide they yield 3 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. For example जो है maltodextrose and raffinose. Okay, इसमें raffinose जो है वो 3 monosaccharide present होता है. तो इसीलिए जो oligosaccharide है वो mainly क्या है जिसमें 3 to 10 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है. ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है माल्टोट्रायोज एंड रफिनोज. ओके, सो नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड. ओके, जो रेफिनोज है उसमें कौन कौन सा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज. ओके, ये है रेफिनोज का कंपोजिशन. इसमें 3 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. ओके, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज दे फॉर्म रेफिनोज. ओके, 3 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड. देन पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड जो है वो इन मोर देन 10 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसमें मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है. Examples of polysaccharides are starch, cellulose, glycogen and dextrin. Okay, इसके अच्छे से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Then polysaccharides are sometimes called then hexogens or pentogens, depending upon the type of monosaccharide they yield on hydrolysis. For example, glycogen, hexogen. Okay, now coming to monosaccharides of biological importance. कौन सा monosaccharide का क्या important role है? For example, जो D-ribose है, D-ribose they are present in where? Nucleic acid. D-ribose कहाँ present होता है? Nucleic acid में. और nucleic acid कौन सा role play करते हैं? It is an important component of DNA, RNA. Okay, DNA, RNA जो nucleic acid है उसका एक important component है. And it is also present in NAD+, NADP+, FAD, ATP. Okay, these are reducing equivalent of okay, and these ribose phosphates are intermediate in HMP pathway. जो ribose phosphate है वो HMP phosphate pathway का एक intermediate product है ribose phosphates. Okay, then ribulose है. राइबुलोज है ये भी पेंटोज सुगर है और ये कौन सा है कीटोज सुगर में आता है. ओके, मतलब कीटो पेंटोज सुगर. जो ऑकरेंस होता है ये फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड इट इज एन इंटरमीडिएट इन एचएमपी पाथवे. ओके, ये एचएमपी पाथवे का इंटरमीडिएट पाथ है राइबुलोज. देन अराबिनोज दे आर प्रेजेंट इन वुड गम्स एंड दे आर important constituent of glycoprotein. Glycoprotein में present होता है. And then D-xylose. Okay, D-xylose are present in wood gums. Proteoglycan में भी होता है. Glycosaminoglycans में भी present होता है. And they play an important role in glycoprotein constituent. Okay, they are important constituent of glycoproteins. ये दोनों अराबिनोस एंड जाइलोस दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. देन डी-लाइक्सोज. ओके, डी-लाइक्सोज जो है लाइक्सोज है वो हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है हार्ट में. ओके, एंड इम्पोर्टेंट जो रूल है ये है क्या इम्पोर्टेंट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइसोफ्लाविन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट मसल्स. ओके, देन डी-जाइलुलोज जो है इट इज इंटरमीडिएट इन यूरोनिक एसिड पाथवे. देन जो डी ग्लूकोज जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर. ओके, सो डी ग्लूकोज है ये कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रूट जूस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, कैन शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज में. ओके, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है ये है it is transported in the blood and oxidized in the cells to produce energy. And in diabetes the glucose is present in the urine. जो डायबिटीज होता है वो ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है डायबिटीज पेशेंट में यूरिन में.
Then D-fructose. D-fructose, it is known as fruit sugar. Okay, this is important. Which sugar is known as fruit sugar? That is D-fructose. And it is mainly present in fruits and honey. Okay, कहाँ मिलता है? Fruits and honey में. And out of all the monosaccharides, this fructose is the sweetest of all the sugars. Okay, सबसे ज़्यादा sweet sugar है fructose. In seminal fluid, means in semen में भी, okay, it provide the energy source for the spermatozoa. Okay, तो स्पर्मेटोजोआ है, वहां पर जो एनर्जी मिलता है वो कौन सी सुगर देता है? फ्रुक्टोज. And it can be changed to glucose in the liver, and in some hereditary disorders, fructose is accumulated, causing hypoglycemia. Then D-galactose. D-galactose को बोलते हैं ब्रेन सुगर. ओके, D-galactose जो है वो है ब्रेन सुगर, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज, क्योंकि जो लैक्टोज जो बनता है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है. It can be changed to glucose in the liver, and it is used to synthesize lactose in mammary gland. Okay, and it is an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Failure in metabolism leads to galactosemia and cataract. Then next is D-mannose. Okay, जो D-mannose है वो mainly present होता है monopolysaccharides, plant polysaccharide and animal glycoproteins. Okay, and it is used for the structure of polysaccharide. It is mainly present in the polysaccharide structure. Okay, so some of the structure of important monosaccharide here you can see the structure of ribose. Okay, you see in ribose there are 5 carbon. This one is 1. Okay, 2, 3, 4 and 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's why it is known as what? D-ribose is, it is pentose sugar. राइबोस को क्या बोलते हैं? पेंटोस सुगर, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होता है. ओके, और एक टर्म है डी. क्यों? इसलिए इसको डी बोलते हैं. इससे जो ये कार्बन है, 4th कार्बन जो है, मीन्स जो 4th कार्बन है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है. ओके, राइट साइड में. ओके, जो ये हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है. जब राइट साइड में होता है तब उस सुगर को बोलते हैं डी सुगर. अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में होता तब हम लोग उसको बोलते हैं एल सुगर. ओके, सो ये जो है इसमें 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोस, दैट इज डी राइबोस. ओके, देन नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज. ओके, फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6. ओके, C6H12O6 मीन्स इसमें 6 कार्बन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये देखो, ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये कौन सा इसमें आएगा? कीटोस सुगर में आएगा. ओके, जिसमें जैसे इसमें एल्डिहाइड था तो ये एल्डोज में आता है, तो इसमें अभी कीटो ग्रुप है तो इसीलिए ये कीटोस में आएगा. ओके, फ्रुक्टोस. तो इसमें C6H12O6 फॉर्मूला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. ओके, ये भी डी फ्रुक्टोज है, दैट इज ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है, तो इसीलिए ये डी फॉर्म है. और फ्रुक्टोज का जो ये 3rd कार्बन है, ओके, 3rd कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. ओके, सारे मतलब हेक्सोज जो सुगर है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज. ओके, सो इसमें क्या है, जो 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है. ओके, सारे हेक्सोज सुगर में. ओके, ये हो गया कीटोहेक्सोज, दैट इज फ्रुक्टोज. कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है फ्रुक्टोज. देन नेक्स्ट इज डी ग्लूकोज. तो डी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर सबका वही है, ये सारे हेक्सो सुगर ही है, इसका भी स्ट्रक्चर है C6H12O6. मैनोस का भी है C6H12O6, इसका भी है C6. गैलेक्टोज का भी H12O6, क्योंकि ये सारे कौन सी में आता है? हेक्सो सुगर में.
और ये रिबोस जो है वो पेंटोस शुगर। ओके, जो हेक्सोस शुगर है मीन्स जो ग्लूकोज है इसका भी वही है, डी ग्लूकोज है ये, और इसका जो थर्ड कार्बन है हर मतलब हेक्सोस शुगर का जो थर्ड कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो मेनोज, नेक्स्ट इज मेनोज। मेनोज का भी वही सेम है, ये भी, और ग्लूकोज का भी देखो ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग एल्डोज शुगर। ओके, सो ये तीनों में ही कार्बोहाइड्रेट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये तीनों ही कौन सा होगा, एल्डोज शुगर होगा। ओके, सो ग्लूकोज मेनोज गैलेक्टोज तीनों ही एल्डोज शुगर है। तो अभी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, जिसमें थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है और बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, और एक है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दैट इज CH2OH। ओके, सो नेक्स्ट जो मेनोज है, ग्लूकोज और मेनोज का भी डिफरेंस देखो। ओके, तो इसमें क्या है, जो सेकेंड कार्बन में है ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होता, राइट साइड में होता है, लेकिन जो मेनोज है सेकेंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है। थर्ड कार्बन में तो हर किसी का भी सेम होता है। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में ही होता है, लेकिन जो मेनोज है, मेनोज का कार्बन 2 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसे डी गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, और ग्लूकोज के साथ यू कैन कंपेयर इट विथ ग्लूकोज। ओके, जो गैलेक्टोज है उसका जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। ओके, इसका सेकेंड मेनोज में सेकेंड कार्बन में लेफ्ट साइड होता है, और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में लेफ्ट साइड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो यही डिफरेंस है कि ग्लूकोज मेनोज और डी गैलेक्टोज में। ग्लूकोज में ओनली द थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होता है। ओके, देन मेनोज में कौन सी में, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन दोनों में, और डिफरेंस किन्स में आता है, सेकेंड कार्बन में ग्लूकोज के साथ, और जो गैलेक्टोज है वो फोर्थ कार्बन में है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो ये डिफरेंस है। Next is monosaccharides structural aspects. Okay, so coming to isomerism. Iso means same. Okay, that has the same molecular formula, but structural configurations are different. Okay, so isomerism जो है वो तीन टाइप का है, एक है structural isomerism, then stereoisomerism, then optical isomerism. जो structural isomerism है, they have a distinct bone disorders. ओके, बॉन्ड ऑर्डर्स मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिस्टिंक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो अभी मैंने समझाया था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का देखो, जो ग्लूकोज है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, और जो ग्लूकोज है उसका जो है एल्डिहाइड। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में मतलब कोई एक बॉन्ड में डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मतलब सिर्फ बोन में डिफरेंट होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है C6H12O6, बस इसमें कोई एक डिस्टिंक्ट बोन्ड ऑर्डर्स होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, CO ग्रुप। The next जो आइसोमरिज्म है वो स्टेरियो आइसोमरिज्म, दैट इज डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज का भी क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6, बट लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सिर्फ थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, लेकिन गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, मतलब एक स्पेसिफिक कार्बन में इसका डिफरेंस है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फोर्थ कार्बन में ग्लूकोज का राइट साइड में होता है, और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो लेफ्ट साइड में होता है, और therefore D glucose and D galactose are known as stereoisomerism. Then coming to optical isomerism, ये होता है एग्जाम्पल D glucose and L glucose. So stereoisomers है वो क्या होता है, these are the compounds that have the same structural formula but differ in their special configurations. Okay, their special configurations में बस difference होता है।
एनांटियोमर्स, ओके, एनांटियोमर्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जांपल डी एंड एल सुगर, ओके, डी एंड एल सुगर, दे आर नोन एज द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ओके, दीज आर एनांटियोमर्स. बिकॉज डी में क्या होता है, जो लास्ट कार्बन का जो ऊपर वाला कार्बन है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में होता है और एल में जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है. Then coming to diastereomers, they are not mirror images of each other. For example, glucose and galactose. Okay, glucose and galactose, इसका जो डिफरेंस होता है वो फोर्थ कार्बन में होता है, क्योंकि जो गैलेक्टोज है उसका जो फोर्थ कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में होता है. एंड जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ओके, ग्लिसरल्डिहाइड जो है, this sugar is the simplest monosaccharide with one asymmetric carbon atom and has chosen as reference carbohydrate. Okay, glyceraldehyde को हम लोग क्या करते हैं, it has chosen as a reference carbohydrate. मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल के साथ अगर रेफरेंस दें तो उसके लिए हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड, ओके, यूज करते हैं एंड इट इज नोन एज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड. So D and L isomers, so अभी बताया था कि D L isomers they are mirror images of each other. ये देखो, mirror images of each other known as enantiomers. Okay, and if the hydroxyl group is on the right side, the sugar is of D series, and if it is on the left side, it belongs to L series. Okay, ये देखो D glucose में जो है इसका ये देखो, जो ये कार्बन है इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होता है, बोलते हैं डी. और जो नेक्स्ट है इस कार्बन में जो है ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज. ओके, सो दीज आर डी एंड एल आइसोमर्स. देन कमिंग टू रेसिमिक मिक्सचर, जब डी एंड एल आइसोमर्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है कोई भी सॉल्यूशन में, देन इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर. Okay, then coming to epimers. Okay, this is one of the important definition term, that is epimers. Okay, what is epimer? ये बहुत common question है epimer. If two monosaccharides differ from each other in their configuration around the specific carbon atom, for example other than anomeric. Okay, for example कौन सा है, glucose and galactose, they are epimers with regard to carbon 4 and glucose and mannose are epimers with regard to carbon 2. Okay, so if two monosaccharide, okay, मतलब दो मोनोसेकेराइड के बीच क्या डिफरेंट होता है, एक स्पेसिफिक कार्बन में डिफरेंट होता है, बाकी सब मोलिकुलर फॉर्मूला सब सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बस एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होता है कार्बन एटम में. ओके, अदर देन एनोमेरिक. सो एनोमेरिक जो कार्बन है वो किसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, C1. ओके, जो कार्बन 1 पोजीशन है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन. और जो एपीमर है, मतलब एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन, कोई भी अगर बाकी कोई कार्बन में किसी भी पोजीशन में कुछ भी डिफरेंट है तो मोनोसेकेराइड के बीच, दैट इज नोन एज एपीमर, बट C1 पोजीशन में नहीं. ओके, C1 में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बाकी C1 का नहीं, बाकी कोई भी सिंगल स्पेसिफिक कार्बन में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डिफरेंट है, दैट इज नोन एज एपीमर. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, अभी जो मैंने दिखाया था ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज किस में डिफरेंट होता है, 4 कार्बन में, क्योंकि ये देखो जो ग्लूकोज है ये है ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज. ओके, सो इसका C6H12O6 है दोनों का ही, और डिफरेंस क्या है इसका फोर्थ कार्बन में, क्योंकि फोर्थ कार्बन में गैलेक्टोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है. तो ऐसे ग्लूकोज एंड मैनोज का कौन सा पोजीशन में डिफरेंट है, कार्बन 2 में. ठीक है, इसका जो कार्बन 2 पोजीशन में है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है. ओके, सो these are known as epimer, when glucose and galactose at carbon 4 and glucose and mannose at carbon 2. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कौन से कार्बन में दिखाते हैं,
एपिमेरिक फॉर्म C4 में, ओके, एंड ग्लूकोज एंड मैनोज कौन सी कार्बन में, कार्बन 2 में, ओके, दिस इज एपिमर्स, ओके, ये याद रखना है अच्छे से, व्हाट इज एपिमर. If two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, okay, इसमें carbon atom आएगा, okay, specific carbon atom. Then coming to next definition, asymmetric carbon or chiral carbon. Okay, so asymmetric carbon और chiral carbon क्या होता है? It is said to be asymmetric when it is attached to 4 different atoms or groups. Okay, कोई भी अगर atoms or groups, कोई भी carbon, okay, suppose this one is carbon, okay, तो इसमें सार ग्रुप अटैच होगा कार्बन में, और ये चारों एटम, सपोज ये एक ग्रुप हो गया, ये एक दूसरा ग्रुप हो गया, ये एक तीसरा, एंड दिस वन, ओके, तो ये जो सारे एटम्स है, ओके, 4 एटम्स आर डिफरेंट, ओके, ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम का अगर 4 साइड्स में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होता है इसमें, तो दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन, ओके, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जब कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ओके, सपोज ये कार्बन हो गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन ग्रुप, ओके, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन सेम है, ओके, सेम एटम से, तो इसीलिए ये जो कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. The number of asymmetric carbon atoms that determine the possible isomers of a given compound which is equal to 2 to the power n. Okay. जो asymmetric carbon है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, that is known as 2 to the power n. n means number of asymmetric carbon atoms. Okay. For example, ग्लूकोज जो है उसमें जो ग्लूकोज का जो asymmetric कार्बन है उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब जो n का वैल्यू है वो है 4, ओके, टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद 2 to the power 4, सो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 16, मींस ग्लूकोज का कितने आइसोमर्स होता है, 16 आइसोमर. तो आइसोमर डिटरमाइन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 to the power n, ओके, नॉट 2n, ओके, इट शुड बी 2 to the power n. और ग्लूकोज का कितना है आइसोमर्स टोटल, 16 आइसोमर, 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, हमने 3 आइसोमर्स पढ़ा था, स्ट्रक्चरल हो गया, देन स्टेरियो हो गया, देन नेक्स्ट इज ऑप्टिकल. So optical activity of sugar, it is a characteristic feature of compounds with asymmetric carbon atom. When a beam of polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it will be rotated either to the right or left. Okay? जब suppose ये एक polarized light है, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है, तो इसको हम लोग अगर पास करेंगे एक ग्लूकोज सॉल्यूशन में, सपोज ये एक शुगर सॉल्यूशन है, ओके, जब ये लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये पास्ड होगा थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, सो इट विल बी रोटेटेड, आइदर राइट साइड में रोटेट करेगा या नहीं तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, ओके, इस साइड रोटेट कर सकता है या इस साइड, राइट साइड रोटेट कर सकता है. और जब ये राइट साइड रोटेट करेगा देन इट इज नोन एज व्हाट, डेक्सट्रोरोटेटरी. डेक्सट्रोरोटेटरी मींस जब रोटेट use the compound are used to compounds that respectively rotate the plane of polarized light to the right, and levorotatory means when it rotate the plane of polarized light to the left. So dextrorotatory means right side में rotate करेगा and levorotatory means left side में rotate करेगा. Okay, so next is derivatives of monosaccharides.
So many derivatives of the monosaccharides they are found in the system which include कौन सा derivatives होता है mainly sugar phosphate, deoxy sugars, amino sugars, sugar alcohol, sugar acids. So these are known as the derivatives of monosaccharides. Okay. So एनोमर्स ओके जैसे हम लोगों ने एपीमर पढ़ा था सो और एक टर्म है एनोमर ओके सो एनोमर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके बहुत कॉमन क्वेश्चंस है ये दोनों एनिमर एपीमर्स एंड एनोमर्स जो एनोमर्स है जैसे एपीमर में क्या होता है व्हेन टू मोनोसेकेराइड डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम एक्सेप्ट एनोमरिक कार्बन ओके एनोमरिक कार्बन के अलावा बाकी कोई भी कार्बन में अगर डिफरेंट है तो दैट इज नोन एज एनोमर मतलब टू मोनोसेकेराइड के बीच में ओके कोई भी डिफरेंस होगा कोई भी कार्बन में एक्सेप्ट एनोमरिक कार्बन तो इसको बोलते हैं हम लोग एपीमर ओके एपीमर का एग्जांपल है glucose and galactose at epimer at carbon 4 position and glucose and mannose at epimer at carbon 2 position okay तो ऐसे एनोमर क्या है एनोमर मीन्स अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज ओके जो रिंग स्ट्रक्चर होता है शुगर का ओके अल्फा एंड बीटा फॉर्म बोलते हैं उसको ओके अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को ही हम लोग बोलते हैं एनोमर ओके एंड इसमें क्या डिफरेंट होता है दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 ओके C1 that is known as the anomeric carbon here you see C1 C1 तो एनोमर जो है जब दो मोनोसेकेराइड के बीच डिफरेंट होता है अराउंड ओनली C1 कार्बन ओके दैट इज नोन एज व्हाट एनोमेरिक कार्बन और इसका जो एग्जांपल है कौन सा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दीज आर नोन एज द एनोमर्स ओके सो आ गया एनोमर एंड एपीमर का समझ में क्योंकि एनोमर जो है वो C1 पोजीशन में डिफरेंट होता है टू मोनोसेकेराइड्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो कौन सी पोजीशन में C1 में और एपीमर में क्या था एक्सेप्ट C1 कोई भी दूसरे कार्बन में अगर डिफरेंट हो दैट इज नोन एज द एपीमर ओके एनोमर का जो एग्जांपल है वो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ओके सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनोमर ओके एनोमर एंड एपीमर important. Then next is mutarotation. What is mutarotation? It is defined as the change in the specific optical rotation representing the interconversion of alpha and beta form of D-glucose to an equilibrium mixture. So here you see alpha D-glucose and beta D-glucose. Okay. सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों का इंटर कन्वर्शन होके एक इक्विलिब्रियम मिक्सर बनता है ओके दैट इज एक्चुअली नोन एज द म्यूटा रोटेशन ओके मतलब it is the change in the specific optical rotation that is the representing the interconversion of alpha and beta forms of the glucose to an equilibrium mixture okay so that is known as muta rotation सो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है डी ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का ये होता है +112.2 डिग्री एंड बीटा डी ग्लूकोज का जो है वो +18.7 डिग्री और जो इसका जो इक्विलिब्रियम मिक्सर का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो है +52.7 डिग्री ओके सो नॉर्मली जो इक्विलिब्रियम मिक्सर होता है उसमें 63% जो है वो बीटा एनोमर प्रेजेंट होता है और जो 36% है वो अल्फा एनोमर होता है ओके with 1% open chain form here you see the cyclic structure of carbohydrate okay कैसे ग्लूकोज का cyclic structure बनता है okay here you see this is the structure of glucose okay here is a linear form है ये linear chain वाला okay 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है 6 कार्बन में ओके और बाकी जो है थर्ड कार्बन जो है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है ओके ये है डी ग्लूकोज ओके सो
नेक्स्ट जो है इसका जो स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का वो ऐसे कॉइल हो जाता है। ओके, जैसे ये है CHO कार्बन, फिर ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कॉइल होता है, और जो 5 और 6 कार्बन है पहले ये ऐसे कॉइल होके फर्स्ट स्टेप में ऐसे बनता है। ओके, देन सेकेंड स्टेप में जो है ये देखो हाइड्रोजन जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब इंटर कन्वर्शन होता है इसका। ओके, सो बाद में जो है इसका नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाता है। ओके, ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको बीटा डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं अभी ये समझो। जो इसका कार्बन नंबर है C1, ओके, इसका जो है ये कार्बन 1 पोजीशन है। ओके, जो कार्बन 1 पोजीशन है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जो, ओके, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर साइड है। ओके, ऊपर वाली साइड है, अबोव। ओके, देन इट इज नोन एज, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है देन इट इज नोन एज बीटा। और इसमें देखो अल्फा डी ग्लूकोज में जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये नीचे होता है। ओके, ये कार्बन पोजीशन है, इसके जो नीचे होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा। ओके, अल्फा डी फॉर्म होता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे प्रेजेंट होता है, और बीटा डी फॉर्म होता है जब अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है, कार्बन 1 पोजीशन में। ओके, बाकी कार्बन में नहीं, ओनली कार्बन 1 पोजीशन में। ओके, बाकी सब सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है 5 और 6 कार्बन में। 5 और 6 दोनों ही एक ही इसमें आ जाता है। ओके, रिंग स्ट्रक्चर में। So this is the ring structure of glucose. You see, this one is the alpha D glucose, okay, and this one is the beta D glucose, and this one is alpha D glucose. Okay, alpha D glucose में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो, एंड जो बीटा डी फॉर्म है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एबो। Then coming to reactions of monosaccharides. Okay, so there are different reactions of monosaccharides. One is tautomerization or enolization. So tautomerization क्या होता है? So it is the process of shifting hydrogen atom from one carbon to another to produce any diol. So hydrogen, suppose this one is here, you see. Okay, suppose ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, सपोज यहाँ से ये चला गया इस साइड, तो shifting of hydrogen atom is known as the tautomerization from one carbon to another. And this example है imidiols. Okay, so जो imidiols होता है वो highly reducing agent होता है. So sugars in alkaline solution, they are powerful reducing agent. The next is reducing sugar. This is attributed to free aldehyde or keto group of anomeric carbons. Okay, so reducing sugar है, they are attributed to free aldehyde or keto group of anomeric carbons. Means reducing sugar क्या होता है जिसमें free aldehyde और keto group present होता है. And the anidiol जो है, they form reduced cupric ion of copper sulfate to cuprous ion, which forms a yellow precipitate of cuprous hydroxide. Okay. Here you see this one is the structure of glucose. Okay. This is the structure of glucose. जब इसको tautomerization होगा, here you see the hydrogen, this hydrogen is shifted here. Okay. यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ओके, फिर ये बनता है, तो ये कार्बन 1 एंड 2 पोजीशन में सारे शिफ्टिंग होता है हाइड्रोजन का। ओके, यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया कार्बन 1 में। ओके, सो ये जो है इसको बोलते हैं एनिडाइल फॉर्म का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, ऐसे फ्रुक्टोज में भी होगा। ओके, देखो ये फ्रुक्टोज है। ओके, फ्रुक्टोज का भी ऐसे ही हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, that is known as the tautomerization or enolization. Okay, anidiol formation. Then next reaction, it is oxidation. So oxidation of aldehyde groups that results in formation of gluconic acid. Okay, for example
जो CHO ग्रुप है उससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो CH2OH है उससे भी बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. Then reduction. When treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde or keto group of monosaccharide is reduced to corresponding alcohol. For example, जो D-glucose है, D-glucose reduced होके क्या बनता है? Sorbitol. D-glucose से बनता है sorbitol. गैलेक्टोज से बनता है दालसीटॉल. ओके, मेनोस से बनेगा मैनिटॉल और फ्रुक्टोज जो है वो रिड्यूस्ड होके दो प्रोडक्ट बनता है. ओके, एक है मैनिटॉल एंड दूसरा है सॉर्बिटॉल. एंड राइबोस और एक है राइबोस रिड्यूस होके बनता है राइबिटॉल. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ मोनोसेक्राइड, किस मोनोसेक्राइड से कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से क्या बनेगा? सॉर्बिटॉल बनता है. गैलेक्टोज रिड्यूस होके क्या बनेगा? दालसीटॉल. मेनोस से क्या बनेगा? मैनिटॉल. फ्रुक्टोज से क्या बनेगा? मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल. एंड राइबोस से क्या बनता है? राइबिटॉल. Okay, next is dehydration. Okay, next reaction is dehydration reactions. So dehydration reactions means क्या होता है? Dehydration means removal of water molecule. Okay, when treated with concentrated sulfuric acid, monosaccharide undergo dehydration with an elimination of 3 water molecule. मतलब कोई भी अगर सुगर सॉल्यूशन में हम लोग उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid ऐड करेंगे. ओके, तो तब क्या होता है? तो उस सुगर सॉल्यूशन से 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेट हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ओके, सब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है तब क्या बनता है? जैसे राइबोस जो है वो डिहाइड्रेटेड होके बनता है फार्फोरेन. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. राइबोस जो है उससे क्या बनता है? फार्फोरेन. राइबोस बनता है तो इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं. फिर ट्रीट करने के बाद क्या होता है? 3H2O रिलीज हो जाता है. ओके, यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाता है रिलीज. सो राइबोस से जब ये रिलीज हो जाता है 3 वाटर, देन इट फॉर्म्स फार्फोरेन. और जो हेक्सोज है वो हेक्सोज से हमें मिलता है हाइड्रोक्सी मिथाइल फार्फोरेन. सेम रिएक्शन. सपोज ये हेक्सोज मीन सपोज ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ हेक्सोज सुगर. ओके, सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया हमने. ओके, सपोज ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. ओके, फिर उसके बाद यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी मिथाइल फार्फोरेन. ओके, और पेंटोजेस जो है वो देता है फार्फोरेन. ओके, फॉर एग्जांपल राइबोस इट गिव्स फार्फोरेन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ओसाजोन फॉर्मेशन. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन में. जो डिहाइड्रेशन जो रिएक्शंस है वो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मोलिस टेस्ट में. जो मोलिस टेस्ट हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल में कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन में, तो उसमें जो मोलिस टेस्ट होता है उसमें जो मेन प्रिंसिपल जो है ये इसके बेसिस के ऊपर है. ठीक है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. देन नेक्स्ट इज ओसाजोन फॉर्मेशन. तो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है? जब फिनाइल हाइड्रोजन है in acetic acid when boiled with reducing sugar it forms ओसाजोन. ओके, जो फिनाइल हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड जब हम लोग बॉइल करते हैं रिड्यूसिंग सुगर के साथ. ओके, रिड्यूसिंग सुगर मींस कोई भी मोनोसेक्राइड के साथ हम लोग अगर बॉइल करेंगे देन दे फॉर्म ओसाजोन्स. ओके, क्या फॉर्म करेंगे? ओसाजोन्स. So the first two carbons जो है, first two carbon means जो C1 and C2 carbon है, they are mainly involved in ओसाजन formation. ये important है. कौन कौन सा दो कार्बन लगता है ओसाजन में? C1 and C2. And the sugars that differ in their configuration on these two carbons give the same type of osazones. Okay, जो sugars they are differ in their configuration on these two carbons give the same type of osazones. Okay, अगर कोई sugars बस ये दो कार्बन में C1 and C2 में
किसी का डिफरेंस है, तो ये दोनों मतलब दोनों सुगर सेम टाइप ऑफ ओसाजन फॉर्मेशन देंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज, they give needle shaped osagon. मतलब if we see under the microscope, then we'll observe needle shaped osagon. Then maltose जो है वो देता है sunflower shaped osagon. Okay, एंड जो लैक्टोज है, ये माल्टोज एंड लैक्टोज दीज आर डाइसेकेराइड. माल्टोज से देता है सनफ्लावर से, और लैक्टोज जो है वो है पाउडर पफ से. Okay, so this is the reaction of osagon. Here you see this one is the glucose. Okay, glucose. So this is the phenyl hydrazine. Okay, phenyl hydrazine जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, फिर उसके बाद ये बनता है. ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट कार्बन में. फिर नेक्स्ट जो है, ये जो है वो फर्स्ट कार्बन में फर्स्ट रिएक्शन होता है. देन अगेन वी ऐड phenyl hydrazine, 2 molecules of phenyl hydrazine, and after that we'll सेकेंड जो है वो सेकेंड कार्बन में उसका रिएक्शन होगा. मतलब जितने भी चेंजेस होता है 1 and 2 कार्बन में. ओके, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसाजन. तो ओसाजन रिएक्शंस में मेनली कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो है 1 and 2 कार्बन. ओके, ये जो 1 और 2 कार्बन ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं, बाकी कार्बन सेम रहता है. ओके, रिमेन सेम. बाकी जो कार्बन से बस 1 और 2 पोजीशन में जितने भी चेंजेस होता है 1 और 2 कार्बन में होता है. दैट इज ओसाजन रिएक्शन. ओके, सो ये याद रखना है कौन कौन से कार्बन और कौन कौन सी सुगर से कौन सी शेप ओसाजन मिलता है. सपोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज, इससे हमें मिलता है नीडल शेप ओसाजन. माल्टोज से मिलता है सनफ्लावर शेप, एंड लैक्टोज से मिलता है पाउडर पफ शेप. Then next is formation of esters. The alcoholic group of monosaccharide that may be esterified by non-enzymatic or enzymatic reactions. जो alcoholic group होता है monosaccharide का, इसमें क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है उसका आइदर एंजाइमेटिक प्रोसेस से और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से. जो कार्बोहाइड्रेट का जो एस्टरिफिकेशन है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब एस्टरिफिकेशन होता है, दैट इज वन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज का जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन होता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा. अगर 1 पोजीशन में होगा फॉस्फेट ग्लूटास, और अगर 6 पोजीशन में होता है देन इट इज नोन एज ग्लूकोज 6 phosphate. Okay, these are the esterification, formation of esters. The next is glycoside. When hemiacetal and hemiketal hydroxyl group of a carbohydrate reacts with a hydroxyl group of another carbohydrate or a non-carbohydrate. Okay, so glycoside क्या होता है, जब hemiacetal और hemiketal hydroxyl group of a carbohydrate जब hydroxyl group of another carbohydrate के साथ react होता है. Okay, it may be hydroxyl group of another carbohydrate भी हो सकता है और non carbohydrate का भी hydroxyl group हो सकता है. Okay, that is known as the glycosides, and the bone form is known as the glycosidic bond. Okay, जो bone formation होगा वो कौन सा है, glycosidic bond. And the non carbohydrate जो moiety है उसको बोलते हैं aglycan. That is known as non-carbohydrate moiety. The next is derivatives of monosaccharide. Okay, so derivatives of the monosaccharide है वो है phosphate esters. Okay, when monosaccharides are used as a fuel, they are metabolized as phosphate esters. For example, triose phosphate, ribose phosphate, glucose 6 phosphate. Okay, these are known as the phosphate ester. Okay, here you see this one is the 3-phosphoglycerate. And this one is the glucose 6 phosphate. Okay, so these are derivatives of monosaccharide, mainly the phosphate esters. The next is deoxysugar. So deoxysugar नाम से ही हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि deoxy. So D means what? Remove है ना, और oxy means oxygen. Okay, means oxygen group is removed.
from the sugar, that is known as the deoxy sugar. Okay, इसीलिए इसका नाम दिया है deoxy sugar, means oxy group remove हो जाता है. In these derivatives, a hydrogen atom replaces one of the hydroxyl group in the parent monosaccharides. An example is deoxyribose. So deoxyribose है, कहाँ प्रेजेंट होता है deoxyribose? डीएनए में. ओके, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट होता है. ओके, दैट इज deoxyribose बोलते हैं. एल फुकोज जो है, that is known as 6-deoxy L-galactose. It is widely distributed in plants, animals and microorganisms. एंड जो एल रेमनोज है उसका है एल डीऑक्सी 6 एल गैलेक्टोज, 6 डीऑक्सी एल गैलेक्टोज. ओके, so here you see this one is known as beta D2 deoxyribose. ओके, जो नॉर्मल जो राइबोज शुगर होता है, ये देखो नॉर्मल राइबोज शुगर में क्या होता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज है, इसीलिए इसका जो 2 नंबर कार्बन है, इट इज वन इज 1 कार्बन, दिस वन इज 2 कार्बन. ओके, जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उससे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं 2. ओके, जो 2 है दैट मीन्स 2 कार्बन में होता है डीऑक्सी. ओके, ऑक्सीजन रिमूव है, तो बीटा इसीलिए बोलते हैं बीटा डी डीऑक्सीराइबोज. ये देखो जो कार्बन 1 पोजीशन में है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो वो कार्बन का ऊपर साइड में रहता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीटा डी फॉर्म, और इट इज एज ए होल इट इज नोन एज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, मींस 2 कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. तो डीऑक्सीराइबोज में कौन सी कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होता है? 2. ओके, कार्बन 2. तो ऐसे इट इज नोन एज एल रेमनोज. ओके, एल रेमनोज में सो एज ए होल दिस स्ट्रक्चर इज मेनोज का जो स्ट्रक्चर है वो है. ओके, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर 6 जो कार्बन होता है, 6 डीऑक्सी एल मेनोज, मतलब जो 6 कार्बन होता है उससे जो है यहाँ का जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 6 डीऑक्सी. तो ऐसे एल फुकोज जो है वो 6 डीऑक्सी एल गैलेक्टोज है, बिकॉज जो 6 कार्बन है वहां का गैलेक्टोज का जो 6 कार्बन होता है वहां से ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 6 डीऑक्सी एल गैलेक्टोज. ओके, ये जो केमिकल नेम है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केमिकल नेम याद होने से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव होता है. तो इसीलिए ये जो केमिकल नेम है ये याद रखना है. जैसे फुकोज का केमिकल नेम क्या है? 6 डीऑक्सी एल गैलेक्टोज. मींस हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एल गैलेक्टोज है, दैट इज मींस गैलेक्टोज का, और 6 डीऑक्सी है मींस 6 कार्बन से गैलेक्टोज का 6 कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है. तो ऐसे रेमनोज में जो है वो मेनोज का स्ट्रक्चर है, और मेनोज का जो 6 कार्बन में ऑक्सीजन ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है. तो डीऑक्सीराइबोज का ऑलरेडी बताया कि इसमें जो सेकेंड कार्बन है राइबोज शुगर का, उससे ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, और जो राइबोज है डीऑक्सीराइबोज है वो पेंटोज शुगर है. ओके, next is amino sugars. Okay, so in a number of sugars, an amino group replaces one of the hydroxyl groups in the parent monosaccharide. Okay, sometimes the amino group is acylated. Example, amino sugar and are D-glucosamine, D-galactosamine and D-manosamine. मीन्स एमाइनो शुगर क्या होता है, कोई भी जैसे शुगर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सपोज एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होके उस जगह पर क्या आता है? एमाइनो ग्रुप. ओके, सो एमाइनो ग्रुप आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एमाइनो शुगर्स. ओके, सो हियर यू सी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ओके, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो 2 पोजीशन में नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है कि नहीं? जब एमाइनो शुगर्स है तो उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और इसके साथ मतलब रिप्लेस हो जाता है एमाइनो ग्रुप के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोसेमाइन. ओके, अल्फा डी ग्लूकोसेमाइन एंड केमिकल नेम है इसका 2
2-deoxy alpha D glucopyranose. ओके, तो ऐसे और एक एमाइनो शुगर है, दिस वन इज नोन एज अल्फा डी गैलेक्टोसेमाइन। तो इसमें भी कार्बन 2 पोजीशन में एमाइनो ग्रुप आ जाता है। ओके, और इसका जो केमिकल नेम है वो है 2 एमाइनो 2 डीऑक्सी अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोज। तो नेक्स्ट जो है वो है सुगर अल्कोहल्स। In sugar alcohols, the carbonyl oxygen of the parent monosaccharide has been reduced, producing a polyhydroxy alcohol. Okay? जो सुगर अल्कोहल है वो क्या होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द जो पेरेंट मोनोसेक्राइड होता है that has been reduced, producing a sugar polyhydroxy alcohol. For example, glycerol and inositol, they are important components of the lipids. And ribitol, okay, राइबोस से फॉर्म होता है राइबिटल, इट इज a component of FMN and FAD. Then sugar acids. The sugar acids है, they are carboxylic acids derived from aldoses either by the oxidation of the C1, that is the aldehyde carbon, or by the oxidation of carbon bearing the primary sugar. Okay, alcohol and sugar acids are important component of many polysaccharides. So next is ascorbic acid or vitamin C. जो ascorbic acid और vitamin C है, they are derived from कौन से, डी ग्लूकोरोनिक एसिड से. ओके, डी ग्लूकोरोनिक से डिराइव होता है, and it is an essential cofactor for many hydroxylation processes. ओके, many hydroxylation processes यहाँ एक important cofactor के हिसाब से ये रोल प्ले करते हैं. ओके, for example you see alpha D glucosamine. Okay, amino group, this is alpha D galactosamine. Okay, and this one is the structure of N-acetyl-nuraminic acid and linear form. ओके, जो विटामिन सी, इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि विटामिन जो सी है, ओके, एस्कॉर्बिक एसिड, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन. ओके, बिकॉज ड्यू टू absence of an enzyme that is known as L-gulonolactone oxidase enzyme. ओके, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है L-gulonolactose oxidase एंजाइम. ये विटामिन सी का सिंथेसिस में लगता है ये एंजाइम, और ये एंजाइम ह्यूमन, प्राइमेट्स, ये सब में एब्सेंट होता है. ओके, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन सी. तो इसीलिए हमें इसको डाइट में लेना पड़ता है, बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होता है. ओके, सो मोनोसेकेराइड ऑलमोस्ट हो गया. तो इसमें हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने मोनोसेकेराइड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मोनोसेकेराइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट में. जो मोनोसेकेराइड है, मेनली इसका जो डेफिनेशन है, मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स इट इज अ सिंपल शुगर. ओके, सिंपल शुगर होता है मोनोसेकेराइड, और इसका जो हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं हमें, फर्दर हाइड्रोलाइसिस, सिंपलेस्ट शुगर. जो क्लासिफिकेशन है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्लास, मोनोसेकेराइड जो क्लासिफिकेशन है वो इट इज बेस्ड ऑन द मेनली द कार्बन एटम दे हैव and the functional group present. Okay, carbon atom they have means according to the carbon number present, and aldose and ketose sugar means if aldehyde group is present then it is known as aldose sugar, and keto group is present it is known as ketose sugar. Okay, for example triose जो है उसमें जो है क्या है, कार्बन नंबर 3 होता है. ओके, एंड एल्डोज जो ट्रायोज है उसका एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, एंड कीटोज जो है वो एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. तो ऐसे जो टेट्रोज है, टेट्रोज में क्या होता है, C4 है, और जो एल्डोज शुगर है ये है एरिथ्रोज, एंड जो कीटोज टेट्रोज शुगर है वो है एरिथ्रोलोज. देन पेंटोज का जो एग्जांपल है वो राइबोज एंड राइबोलोज है. हेक्सोज का जो है एल्डोज में आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, एंड कीटोज में है फ्रुक्टोज, एंड हेप्टोजेस में आता है कार्बन नंबर 7, एंड एल्डोज शुगर में एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज, एंड कीटोज में है सीडोहेप्टोलोज. ओके, सो मोनोसेकेराइड्स
का जो इम्पोर्टेंट रोल है, मेनली कौन सा मोनोसेक्राइड सबसे इम्पोर्टेंट है? एक है पेंटोस शुगर, ओके, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज, ओके। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लाइक डीएनए एंड आरएनए, ओके। और एनएडीपी, एनएडी प्लस, ओके, एफएडी, ये सब में भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है राइबोज शुगर का, ओके। देन वन इम्पोर्टेंट और मोनोसेक्राइड है लाइक्सोज, ओके। these are no heart muscles में present होता है, and they are constituent of lysoflavin that is isolated from human heart muscles. So glucose हम लोग सबको पता है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। एंड जो फ्रुक्टोज है वो है फ्रूट शुगर, ओके। फ्रूट शुगर मीन्स दे आर मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स एंड हनी में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है फ्रुक्टोज का, ये याद रखना है आप लोगों को। तो फ्रुक्टोज है वो कौन सा शुगर है? फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, एंड स्वीटेस्ट, ओके। ये 3 पॉइंट। स्वीटेस्ट कौन सा शुगर है? फ्रुक्टोज। एंड गैलेक्टोज जो है वो ब्रेन शुगर है। मेनोज है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एंड मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार रिवाइज कर रही हूँ। एक होता है एपीमर, एक है एसिमेट्रिक कार्बन, एनोमर। ये बहुत ही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके, मोनोसेक्राइड्स में। So epimer जो है वो क्या होता है? If two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, okay? कोई भी दो मोनोसेक्राइड अगर एक स्पेसिफिक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम में उसका डिफरेंस होता है, देन इट इज नोन एज एपीमर। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, they are epimer at carbon 4, and glucose and mannose, they are epimer at carbon 2, okay. Next is asymmetric carbon. Asymmetric carbon or chiral carbon क्या है? It is said to be asymmetric when it is attached to 4 different atoms or groups. Okay, then it is known as what? Asymmetric carbon atom. So glyceraldehyde जो है, एक स्ट्रक्चर दिया है ग्लिसरल्डिहाइड का। यहाँ देखो ग्लिसरल्डिहाइड एसिमेट्रिक नहीं है ना, ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। ये देखो, और ग्लिसरल्डिहाइड नहीं, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो एसिमेट्रिक कार्बन इसमें एब्सेंट होता है। ये देखो, ये कार्बन है, सी, तो इसमें दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2OH, CH2OH। तो दैट्स व्हाई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज नॉट एसिमेट्रिक। Then one more important topic, it is एनोमर। सो एनोमर क्या होता है? जैसे एपीमर होता है, इट इज द two monosaccharide differ in a specific single specific carbon atom except anomeric carbon, that is C1, but एनोमर जो है वो जस्ट एपीमर का ऑपोजिट होता है, ओके। दैट इज जब टू मोनोसेक्राइड एनोमरिक कार्बन में दोनों का डिफरेंस जो है वो कौन सी कार्बन में होता है? एनोमरिक, दैट इज C1 कार्बन में, okay। For example, alpha D glucose and beta D glucose, they are known as anomers of each other, okay। And ऐसे म्यूटा रोटेशन भी एक important definition है, ये सब definition के लिए बहुत important है, okay। म्यूटा रोटेशन, it is defined as the change in the specific optical rotation representing the interconversion of alpha and beta forms of D glucose to an equilibrium mixture, okay। That is known as muta rotation. The next one is the what is tautomerization. Tautomerization क्या होता है? The process of shifting hydrogen atom from one carbon to another to produce anidiols. Okay. और एनिडायल क्या होता है? They are highly reducing agent. Okay. जो एनिडायल्स है वो highly reducing होता है, and जो sugars होता है alkaline solutions are they are powerful reducing agent. Okay. जो reducing sugar है वो mainly एट्रीब्यूटेड करता है फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन के लिए। और जो एनिडायल है वो कैसे फॉर्म होता है? शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम से, ओके। एंड दिस इज द बेसिक ऑफ बेनेडिक्ट रिएजन, ओके, बेनेडिक्ट टेस्ट। देन ये रिड्यूसिंग प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे ग्लूकोज से कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है? सॉर्बिटल। गैलेक्टोज से क्या बनता है? रिड्यूस्ड होके दलसीटल। मेनोज रिड्यूस होके क्या बनता है? मेनिटॉल। फ्रुक्टोज रिड्यूस होके क्या बनेगा? मेनिटॉल एंड सॉर्बिटल। राइबोज रिड्यूस होके क्या बनेगा? राइडिटॉल, ओके।
Then next is dehydration. Dehydration is also very important reactions. तो ये डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो कौन सा टेस्ट के ऊपर होता है? मोलिस टेस्ट. ओके, मोलिस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है, मोलिस टेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रैक्टिकली हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ये मोलिस टेस्ट. ओके, एंड दिस मोलिस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है ये यही है. जब हम लोग कोई सुगर सॉल्यूशन मींस मोनोसेकेराइड को कोई भी सुगर को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे ओके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो तब क्या होता है? तो उस सुगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होके जाता है. ओके, चले जाता है, निकल जाता है. और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट. ओके, एंड दिस डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हेक्सोस से जो डिहाइड्रेटेड बनता है, हेक्सोस मीन्स सपोज ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, फ्रुक्टोज, जो हेक्सोस शुगर है उससे बनेगा जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सीमिथाइल फॉर्फुरैन. ये देखो, दिस वन इज नोन एज द हाइड्रोक्सीमिथाइल फॉर्फुरैन. ओके, एंड जो पेंटोज होता है उससे बनता है फॉर्फुरैन. ओके, हेक्सोस से बनता है हाइड्रोक्सीमिथाइल और पेंटोज से बनेगा फॉर्फुरैन. और ओसाजन जो है, ओसाजन में कौन सा रिएजेंट लगता है? फिनाइल हाइड्रोजन. ओके, फिनाइल हाइड्रोजन किसमें? एसिटिक एसिड में. ओके, जो फिनाइल हाइड्रोजन एसिटिक एसिड में ये रिएजेंट लगता है. और इसमें कौन सा मेनली जो कार्बन इन्वॉल्व होता है? C1 एंड C2. okay, these two carbons are mainly involved in oxazon formation. और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि किस किस से क्या क्या बनता है. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, दे आर ऑल हेक्सोस शुगर. ओके, तो दे गिव्स नीडल शेप. देन माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, वो बनेगा सनफ्लावर शेप्ड oxazon. और देन लैक्टोज जो है वो पाउडर पफ शेप. ओके, so this is the here you see only 1 and 2 carbons are involved in oxazon formation. Okay, so ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक है डीऑक्सी शुगर. ओके, डीऑक्सी शुगर सपोज डीऑक्सीराइबोज जो है, तो डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है उससे कौन सा कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है? कार्बन 2 में. ओके, कार्बन 2 से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. और जो एल रेमनोज है वो मेनोज का 6 पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है 6 कार्बन से. और जो एल फोकस है वो गैलेक्टोज का 6 कार्बन से रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन. ओके, सो दीज आर नोन एज डीऑक्सी शुगर. देन एमाइनो शुगर, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विथ एमाइनो ग्रुप. ओके, ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस डाइसैकेराइड्स. ओके, सो डाइसैकेराइड्स जो है, डाई मीन्स व्हाट इज डाई? डाई मीन्स 2. Yeah? This di means 2 and saccharide means sugar. मतलब जिसमें 2 सुगर प्रेजेंट होता है that is known as disaccharides. Okay, 2 saccharides are present, that is known as disaccharides. So disaccharides are sugars that are composed of 2 monosaccharide units joined by glycosidic linkage. Okay, and this linkage जो जैसे 2 सुगर होता है. ओके, सपोज 2 मोनोसेकेराइड, सपोज ग्लूकोज है. ओके, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज जो है वो 2 मोलिक्यूल जो होगा तो उसको तो ज्वाइन होना पड़ेगा, है कि नहीं? सपोज ये एक ग्लूकोज मोलिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज मोलिक्यूल है, तो ये दोनों का जो ज्वाइनिंग होगा तो वो किससे क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग को ग्लाइकोसाइडिक बोन. ओके, or glycosidic linkage. So disaccharides are sugars that are composed of 2 monosaccharide units joined by glycosidic linkage. And linkage may be either 1 or 2 and it depends on the position of the atoms attached to the anomeric carbon of the sugar. Okay. And the disaccharides undergo mutarotation at the reducing end. And the most common disaccharides that are produced by mammals are कौन सा most common है? Maltose, isomaltose and lactose. Okay, these are most common disaccharides produced by mammals: maltose, isomaltose and lactose.
Here you see maltose and जो isomaltose है, they are generated during digestion of starch in the gut. जो starch है वो कौन सा सुगर है, वो पॉलीसेकेराइड है. जब starch digestion होता है गाट में तब हमें मिलता है maltose and isomaltose. Okay, जो maltose है this is made up of 2 glucose units. Okay, जो lactose होता है, lactose it is known as what? Milk sugar, ना? Lactose is known as the milk sugar. Okay, lactose को क्या बोलते हैं? Milk sugar. And it is synthesized by mammary gland and it is important component of milk. और ये जो lactose होता है वो किस किस से बनता है? 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose. Okay, ये दो मोनोसेकेराइड से बनता है lactose, glucose and galactose. And next another example of disaccharide it is sucrose. Okay, जो sucrose है उसको हम लोग बोलते हैं common table sugar. Okay, and it is a non-reducing disaccharide. Sucrose का main important point क्या है? बाकी जो मोनोसेकेराइड है, okay, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड तो सब reducing ही है, लेकिन डाइसेकेराइड में जो सुक्रोज है वो है नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड. और सुक्रोज और एक है ट्रिहालोज. ओके, sucrose, trehalose, these are non-reducing disaccharide. Okay, दो डाइसेकेराइड ही है जो नॉन रिड्यूसिंग है. One is sucrose and another is trehalose. And so sucrose disaccharide है, it is made up of glucose and fructose. Okay, जैसे maltose बन गया 2 ग्लूकोज से, lactose बन गया 1 molecule of glucose and another molecule of galactose. और sucrose जो है वो बन गया 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose से. और जो सुक्रोज ट्रिहालोज इट इज ऑल्सो ए डाइसेकेराइड. ओके, जो सुक्रोज एंड ट्रिहालोज है वो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है. ओके, बाकी सारे जैसे माल्टोज है, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज, लैक्टोज, दीज आर ऑल रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड. और जितने भी मोनोसेकेराइड्स अभी हमने पढ़ा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइबोज, देन सीडोहेप्टुलोज, मतलब सारे जो मोनोसेकेराइड्स है वो सारा सब रिड्यूसिंग है. ओके, रिड्यूसिंग शुगर है. बस डाइसेकेराइड में दो नॉन रिड्यूसिंग है. कौन कौन सा है? सुक्रोज एंड ट्रिहालोज. ओके, सो दीज आर नॉन रिड्यूसिंग. ओके, सो हियर यू सी रिड्यूसिंग. ओके, डाइसेकेराइड इट मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. ओके, डाइसेकेराइड को दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड और अनदर वन इज द नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड. जो रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है वो क्या होता है? जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड. फॉर एग्जांपल लैक्टोज एंड माल्टोज. एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड क्या है? जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है. नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप. एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन सा है, सुक्रोज एंड ट्रिहालोज. ओके, और बाकी जो है ऑल मोनोसेकेराइड्स दे आर रिड्यूसिंग शुगर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग में कौन कौन सा है? लैक्टोज एंड माल्टोज. और इसका क्या याद रखना है आपको? इसमें क्या है? एग्जाम्पल ओके, डेफिनेशन, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है. और नॉन रिड्यूसिंग में आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसमें कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है. एग्जाम्पल सुक्रोज और ट्रिहालोज. मतलब फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO और CO कीटो ग्रुप है वो मतलब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके, वो फ्री रहता है एज इट इज, मतलब स्ट्रक्चर में वो फ्री रहता है वो. लेकिन नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का मन होता है, मतलब जो CHO और CO ग्रुप होता है तो उस कार्बन में क्या होता है? मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसे सुगर में हम लोगों का कौन सा बॉन्ड होता है? एक सुगर से दूसरा सुगर बॉन्ड करने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो यूज हो जाता है. ओके, वो कार्बन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड.
ओके, बाकी मोनोसेक्राइड्स में कोई बोन फॉर्मेशन का कोई इशू नहीं है, बात नहीं आते हैं, इसीलिए जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो सारे रिड्यूसिंग ही है। ओके, नेक्स्ट we'll discuss about the important disaccharide, that is maltose. ओके, जो माल्टोज है वो कहाँ से हमें मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड एज द इंटरमीडिएट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ओके, बाय द एंजाइम नोन एज एमाइलेजेस। जो स्टार्च है वो एक पॉलीसेकेराइड है, ओके, जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस होता है, और वो जो हाइड्रोलाइसिस है वो कौन सा एंजाइम से हाइड्रोलाइसिस होता है? स्टार्च एमाइलेज से, ओके, तब हमें मिलता है माल्टोज। ओके, जस्ट मैंने ऐसे ही एक बनाया, ये देखो। ओके, जो माल्टोज है वो बनेगा स्टार्च से। ये स्टार्च जो है वो है पॉलीसेकेराइड, ओके, ये है पॉलीसेकेराइड। जो स्टार्च जो है वो जब डाइजेस्ट होता है और इसमें एंजाइम यूज होता है एमाइलेज, जो ये स्टार्च डाइजेस्ट होके बनेगा माल्टोज, ओके। फिर माल्टोज जो है वो फिर डाइजेस्ट हो गए, क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके, दो ग्लूकोज। सो दिस इज द how maltose is obtained as intermediate in the hydrolysis of esters by enzymes known as amylases. Okay, so in maltose one molecule of glucose, okay, दो molecule होता है maltose में, so one molecule of glucose is linked through the hydrogen group on the C1 carbon atom in a glycosidic bond to the hydroxyl group on the C4 of his second molecule of glucose. मतलब एक ग्लूकोज का जो C1 पोजीशन होता है उसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है, C1 पोजीशन में जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो बाइंड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है C4 पोजीशन में, मतलब C1 ऑफ हाइड्रोजन एंड C4 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओके। ओके, C1 जो है वो एक ग्लूकोज का, और C2 जो है, C4 जो है वो सेकेंड ग्लूकोज का यूज होता है। और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो फॉर्म होता है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं एज ए अल्फा 1 to 4 linkages, okay, you see this one is the alpha 1 to 4 linkage, okay, the glycosidic linkage between two glucose residues that is designated as alpha 1 to 4, and it is used to specify that the anomeric carbon involved in glycosidic bond has the alpha configuration. इसीलिए हम लोग अल्फा यूज करते हैं, जो मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा डी ग्लूकोज में होता है, इसीलिए इसको हम लोग अल्फा से मेंशन करते हैं, अल्फा 1 to 4, okay. Here you see that this one is the structure of maltose, okay, this is the structure of maltose, that is 2 alpha D glucose molecule, this one is alpha D glucose, and this one is another alpha D glucose molecule. Here you see this C1 of first alpha D glucose molecule, this one is the C1 and this one is the C4. So C1 of alpha D glucose and C4 of another alpha D glucose, okay, linked by this bond is known as what? Glycosidic bond, okay. So this is the structure of maltose, okay. In the second sugar, hydroxyl group can exist in either the alpha or beta configuration, and this free anomeric hydroxyl group confers the property of muta-rotation on maltose, and the free anomeric carbon that can act as a reducing agent, and the disaccharide is a reducing disaccharide, okay. So next is isomaltose. So maltose के साथ ही और एक आता है, that is known as what? Isomaltose. So isomaltose क्या होता है? This is another disaccharide obtained during the hydrolysis of certain polysaccharides. Okay? ये भी polysaccharides का जो है, कोई कोई polysaccharide है like starch, glycogen. So इसका जो hydrolysis होता है तब ये disaccharide बनता है. Okay? So ये isomaltose हमें कहाँ से मिलता है? Polysaccharide का hydrolysis से ही. Okay.
and it is similar to maltose except that it has alpha 1 to 6 linkage. तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज का एक ही डिफरेंस है कि माल्टोज में हमें मिलता है अल्फा 1 to 4 लिंकेज बनता है, लेकिन जो आइसोमाल्टोज है वो अल्फा 1 to 6 means alpha 1 to 6 means this one is the alpha D glucose, okay, first alpha D glucose and this one is the second alpha D glucose. इसका जो कार्बन 1 पोजीशन है वो उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बाइंड होता है C6 ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, तो इसीलिए इसका जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं अल्फा 1 to 6 लिंकेज, ओके, दिस इज आइसोमाल्टोज. So next, in the next class, we'll discuss about the another disaccharides like the lactose, okay, sucrose, then trehalose, cellobiose. Okay, thank you.